بہت سال پہلے یہاں سے بہت دور ایک بوڑھا سوداگر اور اس کا بیٹا ارجن رہتے تھے۔ ایک دن بوڑھے سوداگر نے کہا، اچھی نسل کے تو گھوڑے ہیں، میں نے انہیں بڑے جتن سے پالا ہے۔ کسی ایسے ملک میں جہاں گھوڑوں کی قیمت اچھی ہو اور وہاں پہ گھوڑوں کی کمی ہو، ایک ایک گھوڑا 100 اشرفی میں بک جائے گا۔ یہاں سے بہت دور دکن میں ایک ایسا ملک ہے جہاں جا کر تم یہ گھوڑے بیچ سکتے ہو۔ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور سفر بھی نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم ہمت کرو اور دور دراز انجان دیسوں میں جاؤ تو ممکن ہے کہ دکن کا راجا اس خیال سے انہیں اور بھی زیادہ قیمت پر خرید لے۔ ارجن اس خیال سے خوشی سے پھولے نہ سمایا کہ نئی نئی جگہیں دیکھنے کو ملیں گی، خوب سحر ہوگی، مگر اس کے باپ نے کہا کہ یاد رکھو کہ پچھم کی طرف مت جانا۔ اگر تم گئے تو ایسے ملک میں پہنچ جاؤ گے جہاں دغاباز اور فریبی لوگوں کی بستی ہے۔ یہاں جو بھی باہر کا آدمی چلا جاتا ہے اس کے ہاتھوں بغیر پریشانی اٹھائے نہیں واپس آتا۔ ایک دفعہ میں بھی وہاں گیا تھا، مگر اپنی بے وقوفی سے اتنی بڑی قیمت چکانا پڑی جسے میں عمر بھر یاد رکھوں گا۔ ارجن نے پوچھا، آخر بتائیے تو، جب آپ ٹھگوں کی بستی میں گئے تو کیا ہوا؟ باپ نے کہنا شروع کیا، کیا تمہیں یاد ہے کہ جب تم چھوٹے تھے تو تمہارا ایک بھائی بھی تھا جس کے ساتھ تم کھیلتے تھے؟ 15 برس ہوئے اپنے کاروبار کے سلسلے میں کئی مقامات پر گیا تو تمہارا بھائی کو بھی ساتھ لیتا گیا۔ میں نے سوچا کہ اس طرح یہ دیس بدیس کی سیر بھی کر لے گا، لوگوں کے رہنے سہنے کا ڈھنگ سیکھے گا اور اس طرح یہ بہت کچھ سیکھ جائے گا۔ جب ہم وطن واپس آ رہے تھے تو بدقسمتی سے انجانے دیس میں جا نکلے۔ ہم شام کو وہاں پہنچے تھے، رات ایک سرائے میں بسر کی۔ لوگوں کی بات چیت کے طریقوں سے پتہ چلا کہ یہ وہی دغابازوں کی بستی ہے جس کا ذکر میں نے سیاحوں سے سنا تھا۔ اب مجھے فکر ہو رہی تھی کہ جلدی جلدی یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ صبح سویرے جب میں سرائے والے کو کرایہ وغیرہ دے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سرائے والے کا بھائی روتا پیٹتا اپنی قسمت کو کوستا چلا آ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی کے ہاں مرا ہوا بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس دغاباز کا کہنا تھا کہ جب میں شام کو گھوڑے سے اترا تو بہت زور زور سے ہانپ رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا کیڑا جو اڑ کر سرائے سے باہر نکل رہا تھا، میری سانس کے زور سے وہ سرائے میں اس جگہ چلا گیا جہاں اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، جس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ میری سانس کے زور سے وہ کیڑا اس کے نتنی میں اڑ کر چلا گیا اور اس وجہ سے اسے بہت زور سے چھینک آئی تو اس کا بچہ پیٹ میں ہی ختم ہو گیا۔ ایک مجمع میرے گرد اکٹھا ہو گیا، ہر شخص اس کی طرفداری کر رہا تھا۔ وہ بار بار یہی کہتا کہ اس بچے کی موت کا ذمہ دار میں ہی ہوں اور اس کی سزا انہوں نے مجھ سے میرا بچہ چھین کر لی۔ دل پر پتھر رکھ کر چلا آیا واپس۔ بیچارہ غریب میرا بیٹا اب بھی ان کے قبضے میں ہے اور ان کی غلامی کر رہا ہوگا۔ تمہارے بھائی کی کلائی کے اوپر ایک تل کا نشان ہے جو بالکل چاند کی طرح نظر آتا ہے۔ بوڑھا یہ کہانی سنا کر رونے لگ گیا۔ ارجن کو اپنے باپ کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ آپ یقین کیجیے بابا، میں ان ٹھگوں کی بستی میں ہرگز قدم نہیں رکھوں گا۔ ارجن دونوں گھوڑوں کو لے کر دور دراز کے ملک کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ کچھ دن بعد وہ ایک دریا کے کنارے پہنچا۔ اس وقت دریا میں باڑھ آئی ہوئی تھی، اس لیے ناؤ والے نے اپنی چھوٹی سی کشتی میں اس کے دونوں گھوڑوں کو لے جانے سے انکار کر دیا اور اصرار کیا کہ وہ پچھم کی طرف چلا جائے تو اس کو وہاں مضبوط کشتی مل جائے گی اور اس طرح کوئی ناؤ اسے ندی پار کروا دے گی۔ جیسے ہی ارجن پچھم کی طرف چلا، ایک دم زور کی آندھی چلنے لگی۔ اس نے چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر چھپنے کی جگہ بھی نہ ملی۔ ارجن نے قریب کے پہاڑ کی طرف دھواں اڑتا ہوا دیکھا، اپنے گھوڑوں سمیت بڑی مشکل سے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اس وقت آندھی کا زور کم ہو گیا تھا۔ ارجن نے دیکھا کہ پہاڑ کے دامن میں ایک گاؤں ہے۔ کیونکہ وہ اب کافی پچھم میں آ گیا تھا اس لیے خیال ہوا کہ شاید یہی ٹھگوں کی بستی ہے۔ اس نے سوچا واپس چلا جائے، پر خیال ہوا کہ ذرا دیکھا تو جائے کہ وہ عجیب و غریب بستی یہ کہانی کیسی ہے جس کی اس نے کہانی سن رکھی ہے۔ وہ پہاڑ کے کنارے جھک کر نیچے دیکھ رہا تھا کہ ایک پتھر کھسکا اور ارجن لڑکتا ہوا گاؤں میں آ گرا۔ اس کے گھوڑے بھی سر پر دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے پہنچ گئے۔ سامنے سے ایک بوڑھا شخص آ رہا تھا۔ اس نے
जो अर्जुन को गिरते हुए देखा तो इसके करीब आ गया। अर्जुन कपड़े झाड़ता जल्दी से उठ बैठा। इसने देखा कि बूढ़ा बहुत गौर से इसे देख रहा है। बेटा, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? बूढ़े ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने सोचा, अच्छा, इस ठगों की बस्ती में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दूसरों की फिक्र है। वो ये सोच ही रहा था कि शुक्रिया अदा करे। बूढ़े ने रोना पीटना शुरू कर दिया। एक मेंढक अर्जुन के नीचे दबकर मर गया। वो बूढ़ा आदमी रो रो कर कह रहा था, हाय हाय मेरे मेंढक। बूढ़ा आदमी रो रो कर मरे हुए मेंढक को देख रहा था और कह रहा था, प्यारे छोटे से बच्चे, मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा। इस बूढ़े को रोते पीटते की आवाज सुनकर बहुत से लोग आ गए और किसी अनजानी जुबान में बूढ़े से बातें करने लगे। फिर उन्होंने अर्जुन को बताया, इस बूढ़े का यहाँ कोई बच्चा नहीं। इसने इस मेंढक को औलाद की तरह पाला था और इसको बहुत चाहता था और इसकी खिदमत करता था। अब बेचारा बूढ़ा अकेला रह गया है, इसलिए वो मेंढक की मौत पर इस कदर दुखी है। और फिर गांव वाले भी इस बूढ़े के साथ रोने पीटने लगे। अर्जुन बुकलाया हुआ था, इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो चाहता था कि जल्दी जल्दी से वहां से चला जाए। इसने इस बूढ़े के गम को कम करने के लिए कहा। इस बूढ़े के गम को कम करने के लिए लोगों से पूछा, अब मैं क्या करूं? लोगों ने कहा, अपने घोड़े में से एक घोड़ा बूढ़े को दे दो। अर्जुन ने कहा, हाय, एक मेंढक के बदले में घोड़ा? अर्जुन ने खफा होते हुए पूछा। बूढ़े ने जवाब दिया, समझ में नहीं आता लड़के, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या आखिर घोड़ा किसी के बेटे से ज्यादा कीमती हो सकता है? अर्जुन को अपना एक घोड़ा इस बूढ़े के हवाले करना पड़ा। वो बहुत गमगीन और दुखी वहां से चला गया, मगर अब वो पहाड़ पर चढ़ना खासा मुश्किल था। इसलिए वो काफी दूर पैदल चला कि कोई राह मिल जाए ताकि इसे गुजरकर पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच जाए। थोड़ी देर बाद पहाड़ के दामन में एक और गांव मिला। अर्जुन का भूख और प्यास के मारे बुरा हाल था। वो करीब के गांव में गया और दरवाजा खटखटाया। एक आदमी बाहर आया जिसके सिर्फ एक आंख थी। अर्जुन ने इससे कुछ खाने पीने के लिए मांगा। इस आदमी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें खाने को कुछ नहीं दे सकता, मगर हाँ, पानी जितना चाहो पी सकते हो। असल में तो पेट भरना जरूरी होता है। पानी पीकर अर्जुन ने इसका शुक्रिया अदा किया और चलने को हुआ। इस एक आंख वाले आदमी ने इससे पूछा, भैया, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा बाप का क्या नाम है? पूछा। जैसे ही अर्जुन ने इसको बताया, इस एक आंख वाले आदमी ने कहा, इसका बाजू जोर से पकड़ लिया और खुशी से चलाया, आखिर तुम मिल ही गए। अब सुनो लड़के, 20 साल हुए हैं मैं तजारत के सिलसिले में तुम्हारे मुल्क गया था। बदकिस्मती से वहां मेरा सारा पैसा चोरी हो गया। मैं तुम्हारे बाप को अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने इससे 200 अशरफियां मांगी तो वो राजी हो गया, मगर इसे जमानत चाहिए थी और वो मेरे पास देने के लिए कुछ ना था। इसने कहा, तुम मुझे अपनी एक आंख निकाल कर दे दो। मुझे पैसे की इतनी सख्त जरूरत थी कि मैं राजी हो गया। वो मेरी एक आंख निकाल कर ले गया। इसने वादा किया था कि 1 साल बाद वो आएगा और मेरी एक आंख जरूर वापस कर देगा, मगर 20 साल गुजर गए, वो अब तक ना आया। अब तो तुम मेरे हाथ लगे हो। अब मेरी आंख वापस कर दो। बाप का कर्ज चुकाना बेटे का फर्ज होता है। मैं तुमको 200 अशरफियां देने के लिए तैयार हूँ, बल्कि 20 अशरफियां सूद की भी दूंगा। मगर देखते ही देखते इस एक आंख वाले आदमी के चारों तरफ हमदर्द लोग जमा हो गए। अर्जुन रोने के करीब था कि इसने कहा, मालूम नहीं कि तुम्हारी आंख का क्या किस्सा है। बहरहाल बताओ कि अब मुझे क्या करना है। इस आदमी ने जवाब दिया, तुम जा सकते हो, मगर अपने घोड़े को यहीं छोड़ जाओ। अर्जुन को घोड़ा छोड़ना पड़ा और बेचारा अकेला ही चल पड़ा। पहाड़ पर से गुजरने की वजह से इसका सारा बदन दुख रहा था। दिल को दुख था और दोनों कीमती घोड़े हाथ से निकल चुके थे। भूख के मारे अब इसे हिला भी नहीं जा रहा था। वो एक दरख्त के नीचे बैठ कर रोने लगा। इधर से एक नौजवान गुजर रहा था। इसने पूछा, तुम कौन हो? अर्जुन को रोते हुए देखा तो रुक कर पूछने लगा। अब अर्जुन अब किसी आदमी से बात करने से डरता था, मगर अजनबी के इस्रार करने पर अर्जुन ने इसे मुख्तसर तौर पर बताया कि किस तरह इसके दोनों घोड़े हाथ से निकल गए। वो नौजवान कुछ देर तक तो चुप रहा, फिर उसने कहा, अच्छा, मैं देखता हूँ मैं तुम्हारे घोड़े कैसे वापस ले सकते हैं। चलो राजा के पास चलो। अर्जुन हिचकिचाया, मगर ये सोच कर चला गया कि अब मेरे पास खोने को रह क्या गया है। नौजवान के साथ राजा के महल की तरफ चला। रास्ते में इसने अर्जुन को सिखा दिया कि राजा से इसने क्या क्या कहना है। राजा ने
अर्जुन की शिकायत सुनकर बूढ़े और एक आंख वाले आदमी को बुलाया। मुकदमा शुरू हुआ। बूढ़ा कह चुका था कि वो मेंढक जो मर गया है वो इसका लेपालक बेटा था। तो अर्जुन ने अपनी पगड़ी से झट मेंढक निकाला और हुजूर, इस मेंढक को मैंने अपना बेटा बना लिया है। मैं इसको पहाड़ के नीचे छोड़ देता हूँ। बूढ़ा पहाड़ से गिरने और इसे मार डाले। जैसे मैंने इसके मेंढक को मारा है वैसे ही इसका बदला पूरा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, मुनासिब तजवीज़ है। भला इसके माकूल होने में किसे शुबा हो सकता है? बूढ़े के मुकदमे का यही बिल्कुल हल है। राजा ने कहा। बूढ़े ने जो ये सुना तो चुपचाप घोड़ा अर्जुन के हवाले किया और चला गया। अब इस एक आंख वाले की बारी आई। इसने अपना मुकदमा पेश किया। अर्जुन ने अपनी सफाई में कहा, मैं कोई शक नहीं कि मेरे बाप का अजब तरह के शौक हैं। इनमें से ये भी है कि वो लोगों की आंखें जमा करता है। हमारे गोदाम में सैकड़ों आंखें जमा हैं। मैं इन साहब की आंख वापस करने को तैयार हूँ, मगर जोड़ की आंख में इस वक्त तलाश कर सकता हूँ जब ये मुझे अपनी दूसरी आंख भी दे दे, ताकि इसकी सही आंख ढूंढ सकूं। मैं इनकी दोनों आंखें वापस कर दूं। बिल्कुल ठीक बात है, राजा ने कहा। अपनी खोई हुई आंख वापस लेने में जरा दिलचस्पी न दिखाई। अजनबी ने अर्जुन से कहा। रास्ते में वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि अचानक अर्जुन की नजर इस लड़के की कलाई पर पड़ी। इसकी कलाई पर वही तिल का निशान था जो बिल्कुल चांद की तरह नजर आ रहा था। अर्जुन को ये बात पता चल चुकी थी कि नौजवान इसी का खोया हुआ भाई है। देखते ही अर्जुन ने अपने भाई को गले लगा लिया। अर्जुन ने भाई अर्जुन के भाई ने इसे बताया कि वो ठग और इसकी बीवी जिन्होंने इसे अपना गुलाम बनाया हुआ था वो मर चुके हैं। तब से वो बेचारा इस मौके की तलाश में था कि अपने मुल्क वापस चला जाए। इतने दिनों ठगों के साथ रहकर वो इनकी चालों से खूब वाकिफ हो गया था। वो जानता था कि इसे कैसे निपटा जाए। दोनों भाई ठगों की बस्ती से रुखसत हो गए, जहां उन्होंने अपनी दोनों घोड़ों की अच्छी कीमत बेचने और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। इनके बाप ने खुश होकर इनका इस्तकबाल किया। बेटे के वापस मिल जाने की खुशी में इसकी आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे। नाजरीन, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।